लेट अस डू सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स। अभी आपको निकालना है हर केस में फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये करना है आपको। सो पहला वाला देखते हैं। You have been given a system which is like this. Okay. This is block M1, this is block M2. And अभी उसको आपको you have to find the acceleration of both the blocks. ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहला वाला हम कर देते हैं। So if you see carefully, both the blocks are connected by a single string, right? So if this block goes downwards, so same amount of distance will be covered by this block also towards the right. ऐसा होगा, right? So ये ब्लॉक अगर नीचे x डिस्टेंस जाता है तो M1 ब्लॉक भी राइट साइड में x डिस्टेंस जाएगा बिकॉज वो सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना? That means if this block is having acceleration a downwards, then this block will also have the same acceleration a towards the right because they are connected by the same string. समझ में आया सबको? अरे है कि नहीं आया तो? हाँ हाँ। सो ये हो गया हमारा। ना लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेंगे? यहाँ पे कुछ नॉर्मल फोर्स लगेगा n1, ठीक है। Now if you see at this point there will be tension towards the right, left, यहाँ पे tension होगा towards the right. At this point also there will be tension downwards. This point the tension will be upwards. ठीक है। So if you try to draw the free body diagram of M1, तो इसका free body diagram कैसे आएगा? ये हो गया हमारा downward force will be there M1 into G, upward force N1, and इस पे एक rightward force लगेगा tension T। और कोई force है क्या? नहीं है, right? So this block is having acceleration A towards the right. And if you see the free body diagram of M2, या free body diagram बना रहा है, so इसका free body diagram कैसे होगा? There will be a downward force M2 into G, upward force tension T। और कोई force है क्या? ठीक है, और तो कोई force नहीं है because there is no contact here, तो कोई normal force नहीं आएगा। And there will be acceleration A which is downwards। तो इसको आप solve कर सकते हैं। Okay, so you can apply Newton's laws। Newton's second law लगा सकते हैं यहाँ पे। So if you apply the second law, so summation F equals to ma होता है। This can be divided into two parts, in x direction and y direction both, ठीक है। So you can write summation Fy equals to m into ay and summation Fx, sum of all forces in x direction equals to mass into acceleration in x direction, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लगाएंगे इस इक्वेशन को, समेशन सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन, तो अगर ये y है ये x है, ठीक है। सो y डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन होगा? कुछ है इसका एक्सेलरेशन? y डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन। So because this block is moving horizontally, there will be no acceleration in vertical direction, right? So sum of all forces in y direction will be zero here, right? Because acceleration is zero. So solving this, you'll get your answer. So you can get n1 minus m1g equals to 0. So you're getting normal reaction, normal forces m1 into g. Okay. Now if you see this in the x direction, if you see sum of all forces in x direction. So what is the acceleration in x direction? X direction में क्या acceleration है इसका? कोई बता सकते हैं?
बोलिए. So in x direction the acceleration will be a, because ये a acceleration है x direction में. हमारा ब्लॉक राइट साइड मूव करेगा ना, तो एक्सेलेरेशन ही होगा. So solving this you'll get your answer t equals to force equals to m है. तो दूसरा इक्वेशन आ गया. And if you see the free body diagram for m2, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, you can again apply sum of fy equals to m into ay. तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, दिस विल बी m2g minus t equals to m2 into a. Solving 1, 2 and 3 you'll get your answer. आपको निकालना क्या, a निकालना है ना एक्सेलरेशन. तो 1 and 2 and 3 को ऐड कर दो, तो आपका a कितना आ जाएगा, you'll get m2g by m1 plus m2 आ जाएगा ऐसे. ओके, क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई डाउट है? और कौन से एग्जांपल दिखेंगे जी? हाँ चलो. सपोज यू हैव बीन गिवन सिचुएशन लाइक दिस. अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया. सो आपको ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, दिस इज मास m1, दिस इज मास m2. अभी आपको दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है. So let us try to solve this. ठीक है. Now if you see carefully in this question, इसमें m1 मास ये रोप से कनेक्टेड है एंड m2 मास ये रोप से कनेक्टेड है, एंड ये दोनों रोप अलग अलग है. These two ropes are different. So now because these two ropes are different, that means what? दोनों का एक्सेलरेशन अलग होना चाहिए, राइट? सर दोनों रोप डिफरेंट क्यों? एक ही तो रोप लगा है. कहाँ एक ही है? एक रोप यहाँ से ये पुली से कनेक्टेड है एंड दूसरा रोप ये वाला है, अलग है तो. अच्छा दो रोप है. हाँ हाँ. ठीक है. तो पहले हमको इन दोनों के एक्सेलरेशन को थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है. लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन फोर्स कितना है. तो अगर यहाँ पे टेंशन लगेगा टी ऊपर की तरफ, सो यहाँ पे टेंशन टी ऐसे होगा, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो टेंशन टी यहाँ पे ऐसे, टेंशन टी यहाँ पे ऐसे होगा, टेंशन टी यहाँ पे ऐसे होगा, एंड यहाँ पे टेंशन टी नीचे की तरफ, ठीक है. तो यहाँ देखेंगे तो टेंशन होगा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे टेंशन होगा नीचे. सो मान लो इसको हम लोग T2 बोलते हैं. ये टेंशन हमको पता नहीं कितना है. ओके. नाउ इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज, ये जो हमारा पुली है, दिस पुली इज मासलेस. इसको आइडियल पुली बोलते हैं. सो मासलेस मीन्स व्हाट, इट हैज नो मास, उसका मास कुछ नहीं है. m equal to 0. So if m equals to 0, we can apply Newton's second law. तो sum of all forces equals to m into a होना चाहिए, बट इसका मास ही 0 है, तो sum of all forces कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट. सो पुली पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है, देयर इज टेंशन टी अपवर्ड्स, दूसरा टेंशन टी अपवर्ड्स है, एंड नीचे T2 है. दैट मीन्स व्हाट, दिस T2 शुड बी इक्वल्स टू 2t, राइट. तो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है ये ब्लॉक पे, ये हो गया 2t. समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर. सो ये टेंशन हो गया 2t, एंड
अभी तो टेंशन का बात हो गया। नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि उनका एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। ओके, सो इफ दिस ब्लॉक गोज डाउनवर्ड्स बाय एक्स डिस्टेंस सपोज, ठीक है, तो ये ब्लॉक कितना आएगा ऊपर? इसको थोड़ा इधर बना देते हैं, दूर बना देते हैं। सो अगर ये नीचे आएगा एक्स डिस्टेंस से, तो हमारा पुली पूरा नीचे आएगा एक्स डिस्टेंस से। दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो दोनों साइड से रोप खींचा जाएगा एक्स डिस्टेंस से। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, राइट? बिकॉज यहाँ से तो रोप कनेक्टेड है, सो पुली ऐसे घूमेगा एंड ये 2x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ठीक है। सो इफ यू ट्राई टू रिलेट द एक्सेलरेशन, तो इफ हियर द एक्सेलरेशन इज ए, तो यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a, राइट? तो ये हमारा एक्सेलरेशन का भी रिलेशन हो गया। सो दिस इज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग, जो मैंने बताया था आपको क्लास में, यू रिलेट द एक्सेलरेशन लाइक दिस। एक और मेथड होता है, वो थोड़ा शायद इजी आएगा आपको। दैट इज लाइक, अगर आपको एक्सेलरेशन को रिलेट करना है, सो दैट मेथड इज कॉल्ड वर्क डन बाय टेंशन शुड बी जीरो। ये मेथड है, ठीक है। तो आपको वर्क डन क्या है पता नहीं, वर्क डन मतलब सिर्फ अभी के लिए बता सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो ये वाला जो मास है m1, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो a1 है, सो वी कैन लेट t1 इंटू x1, सॉरी डिस्प्लेसमेंट x1, सो t इंटू x1 माइनस, अब ये ब्लॉक तो नीचे जा रहा है लेकिन टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, सो जगह माइनस t इंटू x2, 2t इंटू x2, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x1 इक्वल टू 2x2 लिख सकते हैं, a1 इक्वल टू 2a2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन हमने ऐसे निकाला था उसको आप ये मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। वगना मतलब बेसिकली एफ डॉट एक्स होता है, तो अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा, ठीक है। दिस इज अनदर वे इन विच यू कैन रिलेट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स, ओके। सो नाउ इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स, अगर m1 का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम? नीचे m1g, ऊपर t, ऊपर एक्सेलरेशन 2 है, एंड अगर m2 का बनाएंगे तो कैसा आएगा? यहाँ पे नीचे m2g, ऊपर टेंशन 2t एंड नीचे एक्सेलरेशन है, ठीक है। Solving this, you'll get your answer. If you apply Newton's law, this will get t minus m1g equals to m1 into 2a, and here you'll get m2g minus 2t equals to m2 into a, ठीक है। अब if you eliminate tension, आपका आंसर आ जाएगा, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये? m2 minus 2m1 into g divided by 4m1 plus m2 equals to acceleration। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मैं सॉल्व किया, डायरेक्टली कर दिया मैंने। This is how we get the acceleration of the block. This is the acceleration of uh, acceleration of 2 equals to a. Acceleration of first block will be 2 times of a. तो ट्वाइस कर देंगे इसको, ठीक है। ये वाला सबको समझ में आया? कोई डाउट इसमें?